Good evening, students. I am your teacher Hemlata Yadav, and today we are going to understand the excretory products and their elimination chapter. And this is class 11th biology, and we are going to understand it. And I have shared the screen with you. So let's start. This is the explanation is given about the main working of the nephrons, and in this chapter the mainly in the human physiology, we understand about the various parts of the excretory system. As you can see, we will start about with excretory system, but basic information that what are the excretory products and their elimination. This is the chapter. So let's start with the topic, the types of excretion. So I'm sharing the screen. A monotelic organism, ureotelic organism, and terrestrial organisms. These are the three types of the organisms, depending upon which type of waste they produce. So they produce mostly if they produce ammonia waste, and they are called ammonotelic. And if they produced urea as waste, then they are called ureotelic. They produce uric acid as waste, then they are called the uricotelic organisms. And cephalocaudate amphioxus like jawless will have protonephridia, earthworms will have nephridia, and vertebrates will have kidney. So these are the structures which are present in the different types of organisms for the excretion. So we will be studying about them in one by one. In vertebrates, they are saying that they have tubular structures. Prawns, antennal glands are present. In platyhelminthes, liver fluke is present. In flatworm, flame cells. Insects, malpighian tubules. And cephalocaudate amphioxus is there. And earthworms have nephridia. And vertebrates are having the kidneys. So the next structures we will be studying. The next slide is present. We'll discuss that. The urinary bladder and the excretory system parts. So the human excretory system consists of kidneys to regulate the amount of water, salt, and other substances in the blood, and 120 to 170 grams of the weight is of kidneys. The kidneys are of fist sized. मतलब हमारी मुट्ठी जितनी छोटी होती है उतना ही बड़ी होती है, इसी साइज की होती है किडनी। बीन शेप की होती हैं, जैसे कि किडनी बीन होता है राजमा, वैसे वो शेप की होती हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है उनकी चौड़ाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर वो मोटी होती है। रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट। किडनी का काम है हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में निकालना। और एक्सेस जो नमक है हमारे अंदर, जो हम खाने में खाते हैं या फिर हमारे बाय प्रोडक्ट कहीं पे भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अगर बन रहे हैं, उसे भी निकालना हमारे ब्लड से। यूरेटर्स ऐसे ट्यूब हैं जो किडनी से निकलते हैं। हर किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, यानी कि पेयर ऑफ यूरेटर है हमारे पास। जैसे एक जोड़ी किडनी है वैसे ही एक पेयर यूरेटर है जो यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ रहा है। यूरिनरी ब्लैडर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ एक मस्कुलर बैग है। बैग लाइक स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गन है।
जो टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को, अंटिल उसको हम अगर बाहर ना रिलीज करें फ्रॉम द बॉडी, तब तक वो अपने यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है। यूरिथ्रा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर स्पिंटर्स भी होते हैं जो कि एक मसल्स के गेटवेज होते हैं जो उसे या बंद रखते हैं नॉर्मली, और जब कोई भी ह्यूमन रिलीज करता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, जब मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो यूरिनेशन कर रहा है, तब उस वक्त की स्पिंटर क्या ओपन होते हैं। आउटर एंड ऑफ द यूरिथ्रा इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलर मसल्स, इन्हीं को स्पिंटर कहा जाता है, सर्कुलर मसल्स को लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप लोकेशन देख रहे हो, तो बैकवर्ड्स ये अलाइंड है इन द लास्ट, वी कैन से 12th रिब्स के पास, 12th और 11th रिब्स के पास इनकी लोकेशन है, और लंबर वर्टिब्री जो थर्ड लंबर वर्टिब्री, वहां तक इनकी पोजीशन लोकेशन आपको दिखा रखी है। अंदर की तरफ आप देखेंगे कॉनकेव रीजन है, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स रीजन है, और उसमें रीनल वेन और रीनल आर्टरी आप जाते हुए देख रहे हो। तो ये डायग्राम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम की पोजीशन भी दिखा रहा है। फिर यूरेटर्स निकल रहे हैं वो भी दिखा रहा है, एंड यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरेटर आकर पोर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो शोन। तो दिस इज डायग्राम इज शोइंग यू मेनी थिंग्स। You can see on this portion both the kidneys, the concave portion is there. concave portion पे आप देख रहे हो रीनल वेन का अंदर ट्यूब जा रही है, रीनल आर्टरी की भी ट्यूब जा रही है, एंड इससे अंदर हर किडनी से दो यहाँ पर पतली पतली सी ट्यूब यूरेटर निकली हुई है। तो ये किडनी का लोकेशन बता रहा है, यूरेटर का लोकेशन बता रहा है। फिर ये यूरेटर आके यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बाहर यूरिन करने के मतलब यूरिन रिलीज करने के काम आता है। तो दीज आर द पिक्चर्स विच आर शोइंग यू द पोजीशन ऑफ द किडनीज and other organs, posterior vena cava, all these things. The kidneys is the composed of three sections. The outer layer is called the renal cortex, the renal medulla, and the middle part and the hollow inner part is called renal pelvis. The cortex is where the blood is filtered. The medulla contain the collecting ducts which can carry the filtered substance to the pelvis. The pelvis is a hollow cavity where urine accumulate and drain into the ureter. Function of the kidney. The principal function of the kidney is filter blood in order to remove cellular waste products from the body. So सबसे मेन काम किडनी का है कि ब्लड को फिल्टर करना, रिमूव करना सेलुलर वेस्ट को जो भी बने हैं बॉडी से, उसे बाहर करना। एट एनी गिवन टाइम 20% ब्लड किडनी में होता ही है। ह्यूमंस फंक्शन कर सकते हैं एक किडनी पर भी, पर दोनों होंगी तो उनका ज्यादा अच्छे से फंक्शन होता है। If one ceases to work, the other increases the size to handle the workload. वो उसको अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और काम कर लेती है। The kidney has other functions, but it is usually associated with the excretion of the cellular waste such as, किडनी के और भी फंक्शन है बट सबसे मेन फंक्शन है यूरिया को रिलीज करना। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारा, प्रोड्यूस होता है लीवर से जहां पर प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं, और इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ द यूरिन में। यूरिया ही है जो यूरिन में सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट है जिसका। यूरिक एसिड यूजुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द डीएनए और द किडनी क्रिएटिनिन बेस्ड प्रोडक्ट्स also there which is present. All these compounds have nitrogenous as their main compound. The nitrogenous waste product and nitrogen in the main component है। Kidney are more than excretory organ. They are one of the major homeostatic organ of the body. They control water, pH, secrete erythropoietin, a hormone that stimulates red blood cell production, and activate the vitamin D production in the skin. तो किडनी विटामिन डी भी बढ़वाती है स्किन में बनाना, और आरबीसी भी बनवाती है किडनीज, एंड दिस इज व्हाई डॉक्टर कैन टेल यू मस्ट फ्रॉम अ यूरिन सैंपल। डॉक्टर इतना सारी चीजें आपके यूरिन सैंपल से भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। ये यूरिन के भी टेस्ट होते हैं इसीलिए।
अब आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो पार्ट्स ऑफ द किडनी का, कि बाहर का स्ट्रक्चर यहाँ पर लाइटर रंग का दिख रहा है और कॉर्टेक्स कहला रहा है, और अंदर का आपको ट्रायंगुलर शेप में पिरामिड जैसा दिख रहा है जो मेडुला कहला रहा है। और आप देख रहे हैं नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल वाले पार्ट वो बाहर की तरफ है, और जो उनके लूप ऑफ हैंडल है वो थोड़े से डीप में, और कलेक्टिंग डक्ट भी डीप में ही है। मेडुला के रीनल आर्टरी रीनल वेन दिख रही है आपको, यूरेटर जाता हुआ दिख रहा था। हाउ ब्लड इज फिल्टर्ड? फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी आर द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स फिल्टरिंग यूनिट है किडनी के। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन है हर किडनी में। नेफ्रॉन लोकेटेड है कॉर्टेक्स के अंदर भी और मेडुला के अंदर भी, दोनों ही किडनीज में। ट्यूब्स नेफ्रॉन की सराउंडेड बाय द सेल्स एंड अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट द टिश्यू। Therefore, material that leaves the nephron enters the surrounding cell and returns to the bloodstream by network of vessels. वेसल्स हैं किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग। नेफ्रॉन के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं। ग्लोमेरुलस होता है नंबर 1, नंबर 2 बोमेन कैप्सूल होता है, नंबर 3 प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले, 4th एंड 5th डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। आउटलाइन क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी नेफ्रॉन का दूसरा नाम है। एनाटॉमिकल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स को अगर बांटे तो रीनल कॉप्सल है पहला, जो कॉर्टेक्स के अंदर होता है। उसके अंदर ग्लोमेरुलस जो कि टफ टफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर बोमन कैप्सूल के अंदर भी हैं, इनको बोल सकते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशंस जो है, ट्यूब्यूल क्या क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहला ट्यूब्यूल जो जस्ट बोमन कैप्सूल से निकलता है उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। लूप ऑफ हैंडले एक यू शेप की ट्यूब होती है, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लास्ट वाला ट्यूब्यूल होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में वो जुड़ जाता है। डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे तो हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं नेफ्रॉन का, उसके बाद आपको ये थ्योरी बता देंगे। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं नेफ्रॉन का। एंड अगर हम जो बातें बता रहे थे आपको कि क्या क्या चीजें हैं, तो पहला आपको यहाँ पर जो ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट रीनल कॉप्सल जिसकी बात हो रही थी, कि इसके अंदर एक तो टफ टफ कैपिलरीज है, यहाँ माउथ के रीजन पे टफ टफ कैपिलरीज हैं, और इनको ग्लोमेरुलस बोला गया है। दीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड ये जिसके अंदर है कप शेप स्ट्रक्चर में उसे बोमन कैप्सूल कहा गया है। एंड फिर आपका ये पार्ट आ गया, ये आप देख रहे हो येलो कलर का जो स्पाइरल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा ट्यूब्यूल। फर्स्ट पार्ट इसका पीसीटी हो गया, एंड देन सेंटर में आपका एक यू शेप का ट्यूब आपको दिख रहा है। फिर यहाँ से लेकर ये ले जा रहे हैं इसको, एंड ऐसे करके ये पूरा आ रहा है। तो ये लूप ऑफ हैंडले, दिस इज लूप ऑफ हैंडले, एंड इनके ऊपर आप ब्लैक कलर का पूरा नेट देख रहे हो। दिस ब्लैक कलर नेट इज कॉल्ड कैपिलरी नेटवर्क। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क मतलब ट्यूब्यूल के चारों तरफ होता हुआ ये पीटीसीएन का नेटवर्क है ब्लैक कलर का। और लास्ट में लास्ट पार्ट इस ट्यूब्यूल का जो दोबारा से कॉइल हुआ उसे डीसीटी बोला गया। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। So these are the structures which are present on the nephron, glomerulus से start करते हुए, and फिर Bowman capsule, and then PCT, then loop of Henle. Afterwards there are this black color tough capillary network, and then the collecting duct. तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डायग्राम की यहाँ पर देख सकते हैं लेबलिंग भी है। These are the labelings which are done. Bowman capsule, you can see white color labels are used. Glomerulus is shown. Then proximal convoluted tubule. Then capillaries are marked. Then distal convoluted tubules are marked. Then collecting duct, branch of renal vein, branch of renal arteries is shown. So this is the way nephron structure is present. The filtration part occur in the renal capsule. The first part of the nephron, there are 3 steps of nephron urine production by the nephron. We'll read them. Kidney in action, outline is given here. And now only material needed by the body are returned to the bloodstream. For example,
जो भी हमें अच्छी चीजें जरूरी है हमारे बॉडी को, 99% पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन्हें वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी फिल्ट्रेट बनता है ट्यूब्यूल के अंदर, उसमें से निकाल लिया जाता है। पानी हम अब्सॉर्ब करवा लेते हैं ब्लड में, ग्लूकोज भी और अमीनो एसिड भी। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रॉ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द सराउंडिंग सेल्स। Small villi-like projections help in the active transport of glucose out of the filtrate and speed up the reabsorption process. From here, these components return to bloodstream. The There is an increase in the sodium concentration in the cells of the loop of Henle as we move from the area of the cortex to the inner part, and this causes water tube to drawn from the filtrate. These high levels of sodium are the result of the so there are various structures which are shown here, and one by one हम इनके फंक्शन भी अब पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड एटली द लीस्ट इज दिस मच दैट फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है। सबसे पहला पार्ट फिल्ट्रेशन जब हो रहा है, ABC, एक कलर को पिंक एरो से मार्क कर रखा है, वो ये बता रहा है कि यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है। ए आप देख रहे हो, येलो ट्यूब्यूल के ऊपर ए कलर का पर्पल का मार्क बना रखा है, लिख रखा है कि देयर, नीचे इंडेक्स के वर्ब में लिख रखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है। और आप देख रहे हो कि कैसे हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि यहाँ पर आपके जो ब्लड आ रहा था इंटरट्यूब्यूलर आर्टरीज से, जो ब्लड आ रहा था पहले तो वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू अंदर आया, इन कैपिलरी नेटवर्क में ग्लोमेरुलस में वो गया, और फिर इस तरफ से वो बाहर निकल गया एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। अब ये बाद में जाकर ये यहाँ पर एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी बना लेगा। और जो फिल्ट्रेट है इसमें 3 तरह के प्रेशर लगेंगे ब्लड के अंदर, जो और प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो फिल्ट्रेशन में थोड़ी रुकावट देंगी। छोटी छोटी चीजों को फिल्टर नहीं होने देंगी, बड़ी बड़ी चीजें। तो एक तो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, प्लस यहाँ पर जो फिल्ट्रेट हो रहा है इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे जो वो फिल्ट्रेट यहाँ इकट्ठा होते रहेगा, तो वो भी इस पे पीछे की तरफ धक्का मारेगा, तो वो भी इसको फिल्ट्रेट कम होने देगा। और एक इसमें बहुत तेजी से खून आ रहा है, तो इसका खुद का भी एक प्रेशर है, जो कि अब इस इन सारे प्रेशर्स को बैलेंस करते हुए एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की स्पीड बन जाएगी, एक प्रेशर भी बन जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ Hg, जिसकी से फिल्ट्रेशन होगा, और उस फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट बन जाएगा, और इसकी स्पीड भी रहेगी, जो कि रहती है आपकी 180 ml 120 ml पर मिनट। एंड इतना सारा फिल्ट्रेट बन जाता है पूरे दिन में कि 180 लीटर्स बन जाता है पूरे दिन में। पर उसमें से हम देखते हैं कि सिर्फ यूरिन तो 1.5 लीटर ही निकलता है पूरे दिन में, हम इतना ही यूरिन बना पाते हैं, तो वो बाकी फिल्ट्रेट था उसका सारा कंटेंट कहाँ जाता है, तो इट इज रीअब्सॉर्ब 99.9% वाटर, और अच्छी अच्छी चीजें रीअब्सॉर्ब जाती हैं, तो उसी स्टेप को बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। दैट वी हैव टू स्टडी के फिल्ट्रेशन में के बाद रीअब्सॉर्प्शन भी होगा, तो ये सेकंड स्टेप होगा यूरिन बनने का। तो बी पार्ट से हम दिखा रहे हैं कि ऑरेंज कलर के नीचे बी पार्ट से हम दिखा रहे हैं कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर हम दिखा रहे हैं आगे सी पार्ट से ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, कुछ चीजें वापस ब्लड वेसल से ट्यूब्यूल में आ रही हैं, बेस चीजें। तो अब यहाँ फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल्स भी दिखा रखे हैं, एफरेंट आर्टरियोल किस तरह से अंदर आ रहा है, आर्टरीज की एपिथेलियम दिखा रखी है, और बड़े बड़े से सेल्स दिखा रखे हैं पोडोसाइट्स नाम के, जो कि बोमन कैप्सूल के मेम्ब्रेन के सेल्स हैं। एंड बोमन कैप्सूल्स आर इज शोन, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इज शोन, एंड स्पेस इज देयर। सो इसकी वजह से mesenteria cells are there, and the blood is filtered and the filtrate is going into the tubule. Blood enter the glomerulus, forms a branch of the renal artery. This blood is under high pressure. The capillary walls are 1 cell thick and they are pierced with the opening fenestrations.
The plasma filters through the membrane under the pressure and the protein do not pass. And the pedicels are there, the glomerular capillary is there, and the podocyte cells are there. The filtration membrane is held in place by the specialized podocyte cells. So these podocyte cells are making filtration membrane, giving it strength. The glomerulus is a mass of thin-walled capillaries. The Bowman capsule is a double-walled cup-shaped structure. The proximal tubule leads to from the Bowman capsule to the loop of Henle. And the loop of Henle is a long structure which is having descending limb, ascending limb. And the descending limb you can see is a thin one, and the ascending limb is the thick one. These is the peritubular capillary network you can see around the loop of Henle. And then finally the tubule, the light color tubule, brown color, light brown color is going into the collecting duct. Interlobular veins, cortical radiate arteries, arcuate veins are there in, and the glomerulus is seen. Afferent arterioles and the cortical nephrons are shown here. Juxtamedullary nephrons who are having the major part of their loop of Henle in the medulla region is shown. So these are about the steps we can see about the excretion. So network error is there. Something has happened. Let me uh, try to do again. Start it again. Otherwise, we will be ending the session here only, and we will be resuming in another video because कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क एरर हो रहा है.